Okay, so till now, what we have studied that there is a syntax analyzer which takes the tokens from the lexical analyzer, apply the grammar, and verifies, generate the parse tree, and verifies that whether the expression is valid or not valid, right? So till now we have seen that how to check that whether grammar is ambiguous or not. If it is ambiguous, then you have to convert that grammar into unambiguous grammar. After that, we have seen that if your grammar is left recursive, then you need to convert that grammar into right recursive grammar. And the reason behind that, because your grammar can stuck in the while parsing, your grammar can stuck into the infinite loop. So that is why you have to convert your grammar into the right recursive grammar, right? So just for the summary, if we see types of grammar, तो अब तक क्या देख चुके हैं आप? You have seen that ambiguous grammar है और अनएम्बिगस ग्रामर है. अगर ग्रामर एम्बिगस है तो फिर आपको उसको अनएम्बिगस ग्रामर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर अनएम्बिगस है तो बहुत अच्छी बात है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव हो सकती है और आपकी ग्रामर राइट रिकर्सिव हो सकती है. अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है, देन यू हैव टू कन्वर्ट योर ग्रामर इनटू राइट रिकर्सिव ग्रामर. Apart from that, there are two more categories. Either your grammar can be deterministic or your grammar can be non-deterministic. So let's understand that what is the meaning of deterministic and non-deterministic, right? So basically, अगर आप finite automata का concept देखें तो deterministic का मतलब क्या है? If you are providing the input, it should generate the one output. With respect to the one input, it should generate the one output. But if you're providing the input and your grammar is generating more than one output, suppose करिए आपने input में दिया A and sometimes it is generating output as AA or sometimes it is generating output as AB, then your grammar is non-deterministic, your machine is non-deterministic. So what happens in the compiler, you require the deterministic grammar. If your grammar is non-deterministic, then your compiler will always be confused while generating the output. So what we require to do that, if your grammar is non-deterministic, first of all, to identify whether your grammar is deterministic or non-deterministic. If it is deterministic, perfectly all right. But if it is non-deterministic, then you have to convert your non-deterministic grammar into the deterministic grammar, right? So this procedure of conversion of non-deterministic grammar to the deterministic grammar is called as left factoring. तो आपने आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, that is the concept of left factoring. What is this concept? The conversion of non-deterministic grammar to deterministic grammar. आप जो non-deterministic grammar है उसको deterministic grammar में convert कर रहे हैं. This procedure is called as left factoring, right? तो सबसे पहले जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ग्रामर है वो डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है. सपोज यू हैव अ प्रोडक्शन A tends to AA, AB and AC. Now what will happen if I need to generate, suppose मुझे generate करना है AC, what will happen? अगर AC generate करना है और आपका जो ग्रामर है उसमें उसके जनरेशन को देखते हैं, उसको कंपाइलर कैसे जनरेट करेगा. तो सबसे पहले सपोज करिए आपके ग्रामर में ये वाला प्रोडक्शन उठाया, ये वाला प्रोडक्शन उठाया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन. ए जनरेट हो गया एंड उसके बाद जो है ए से ए वेरीफाई हुआ, ए जनरेट हो गया. लेकिन जैसे ही आपकी जो ग्रामर है उसने स्कैन करा कि जो सेकंड स्ट्रिंग है वो सी है, तो विच मीन्स ये क्या करेगा? बैक ट्रैक करेगा. बैक ट्रैक क्यों करेगा? क्योंकि जो सेकंड स्ट्रिंग है वो हमें सी चाहिए और इस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो सेकंड स्ट्रिंग है वो ए है. बैक ट्रैक करके वापस से कहाँ आएगा? दूसरे प्रोडक्शन पे जाएगा, ए बी. अब जब तक इसने ए स्कैन करा तब तक सही था, बट द सेकंड स्ट्रिंग इज बी एंड यू रिक्वायर सी, तो अगेन बैक ट्रैक करेगा
और बैक ट्रैक करके आपकी किस प्रोडक्शन पे जाएगा, थर्ड प्रोडक्शन पे जाएगा, एंड देन फाइनली it will say that your string is accepted. So what is the meaning of that? Your compiler is confused. It is navigating all the productions one by one and backtracking if it is not finding the required string. So this type of grammar is basically a non-deterministic grammar. Why it is non-deterministic? Because by giving a small a and by giving a small a, you are getting two outputs, AA, AB and AC. So it should not happen. So first of all, you have to convert your grammar into the deterministic grammar, right? Acha, this problem is also called as, ये जो problem है grammar में, it is also called as common prefix problem. इसको हम common prefix problem भी कहते हैं. Common prefix problem का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो वेरिएबल है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसके जितने भी प्रोडक्शंस है उस वेरिएबल के, सेम वेरिएबल के, वो एक कॉमन टर्मिनल से शुरू हो रहे हैं. ये देखिए इधर कॉमन वेरिएबल या टर्मिनल से शुरू हो रहे हैं, तो विच मींस इट इज अ कॉमन प्रीफिक्स प्रॉब्लम. तीन प्रोडक्शन शुरू हो रहे हैं ए से. पहला प्रोडक्शन ए है, कॉमन प्रीफिक्स स्मॉल ए. दूसरा प्रोडक्शन ए बी है, कॉमन प्रीफिक्स स्मॉल ए. एंड तीसरा प्रोडक्शन ए सी है, तो अगेन कॉमन प्रीफिक्स स्मॉल ए. सो इट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर. फाइन. तो इसका अब जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर है, इसको चेंज करना है. तो ये तो बहुत सिंपल सी ग्रामर है. अगर आपको इसे चेंज करना है तो कॉमन प्रीफिक्स रखा हमने, कॉमन, एंड जो सेकेंड स्ट्रिंग है जहां से आपका चेंजेस शुरू होने चाहिए, उसको हमने दूसरे वेरिएबल से डिनोट करा. एंड द नेक्स्ट वेरिएबल कैन बी एनी वन ऑफ दिस स्ट्रिंग. जो भी स्ट्रिंग जनरेट करनी होगी वो आप इससे जनरेट कर लेंगे. तो यू हैव अवेलेबल विद ओनली वन ऑप्शन, ईदर यू कैन जनरेट ए और बी और सी. सो दिस ग्रामर हैज बिकम नाउ deterministic grammar, right? Okay. Now let's see one example. तो अभी ये जो प्रोसीजर है, इसको आपने क्या बोला, लेफ्ट फैक्टरिंग बोला. तो लेफ्ट फैक्टरिंग करने के लिए आपको कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, राइट? तो व्हाट आर दी रूल्स? सबसे पहले आपका जो प्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें आप अल्फा फाइंड आउट करिए, जैसे मैं ई से डिनोट कर रही हूं. देन ए डैश, देन ए डैश को आप सब्स्टिट्यूट करोगे बीटा 1 जिसको मैं B1 से डिनोट कर रही हूँ, बीटा 2 जिसको मैं B2 से डिनोट कर रही हूँ, एंड B3 एंड सो ऑन. जितने भी आपके पास उसके बाद बीटास की वैल्यू है उनको आप यहां पर रिप्लेस कर दोगे. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. So first of all, you need to identify whether the given grammar is deterministic or non-deterministic. If it is non-deterministic, then you have to convert this grammar into the deterministic grammar, right? तो ग्रामर जो आपको दी हुई है वो ये है. If expression, then a statement. If expression, then a statement, else a statement, and A. This is the grammar given to you. So whether check that this grammar is non-deterministic or not. If it is non-deterministic, then you have to convert this grammar into the deterministic grammar. Now this grammar is non-deterministic. Why? Why this grammar is non-deterministic? Because we can take the common prefix. अगर आप देखें तो सारे के सारे प्रोडक्शन में आप एक कॉमन प्रीफिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट कॉमन, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट कॉमन है. तो दो प्रोडक्शंस में आपको ये जो प्रीफिक्स है ये कॉमन मिल रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रामर है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, राइट? अब इसमें आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है. तो अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? चलिए सबसे पहले ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज एस. नाउ व्हाट इज ई? ई का मतलब अल्फा की बात कर रही हूं मैं. ई क्या है यहां पर? कॉमन प्रीफिक्स आई ई टी एस. इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट. अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास B1 क्या है. फर्स्ट प्रोडक्शन में बीटा की वैल्यू क्या है? कॉमन प्रीफिक्स के बाद जितना भी स्टेटमेंट है दैट इज योर बीटा. तो फर्स्ट प्रोडक्शन में B1 नल है एंड B2
B2 का मतलब सेकेंड प्रोडक्शन में बीटा की वैल्यू क्या है, तो सेकेंड प्रोडक्शन में बीटा की वैल्यू क्या है, E एंड S, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। तो चलिए रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन हमें क्या बनाना है, A टेंड्स टू E A डैश, तो A टेंड्स टू मतलब S टेंड्स टू E, कॉमन प्रीफिक्स E, if expression then statement, एंड देन आपको क्या रखना है, S डैश, A डैश की जगह पर मैंने क्या रखा है यहाँ पर S डैश, एंड देन जो कॉमन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, जो कॉमन प्रीफिक्स प्रॉब्लम का जो डिटरमिनिस्टिक प्रोडक्शन है उसको आप रख देंगे यहाँ पर, उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए आपको। फिर आप A डैश का रूल बना रहे हैं, तो A डैश का मतलब हम S डैश की बात कर रहे हैं। पहला बीटा क्या है आपका, नल है, और दूसरा बीटा क्या है हमारा ES है, ठीक है, जो दूसरा बीटा है वो हमारा क्या है, ES है। अच्छा, ये जो ग्रामर है इसमें एक प्रोडक्शन और है, ये प्रोडक्शन ये है आपका E टेंड्स टू B, ओके। तो ये वाला जो है इसमें तो कोई नॉन डिटर्मिनिज्म है ही नहीं, तो इसको एज इट इज आप लिख देंगे। नाउ योर ग्रामर हैज बिकम डिटर्मिनिस्टिक, फ्रॉम नॉन डिटर्मिनिस्टिक से आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिटर्मिनिस्टिक में कर दिया। नाउ योर असाइनमेंट इज टू फाइंड आउट दैट द ग्रामर, द गिवन ग्रामर, ये इस वाली ग्रामर की बात कर रहे हैं हम, जो ग्रामर आपको मैंने दी हुई है, वेदर इट इज एम्बिगस और नॉट। सो आपको सॉल्व करना है, आपका प्रॉब्लम है find that the given non-deterministic grammar, ये तो आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इज एम्बिगस और नॉट, आपको ये भी फाइंड आउट करना है, एम्बिगस और नॉट। तो आपको पता है कि कोई भी ग्रामर एम्बिगस कब होगी, when it is generating a 2 parse tree for the common string, right, or it is generating 2 LMD or it is generating 2 RMDs। तो मैं आपको चलिए एक हिंट और दे देती हूँ, एक स्ट्रिंग दे देती हूँ आपको जनरेट करके देखना है, if expression then if expression then statement else statement, you have to generate this and check whether the given grammar is ambiguous or not ambiguous, ठीक है, unambiguous, okay। So the next question in this series is इसको सॉल्व करके देखिएगा। दिस इज द ग्रामर गिवन टू यू, this is the grammar given to you, and you have to find out that whether your grammar is deterministic or non-deterministic. If it is non-deterministic, you found that it is non-deterministic, then you have to convert this grammar into deterministic grammar, okay। Now one more thing, sometimes क्या होता है कि एक स्टेप में आपकी जो ग्रामर है वो डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट नहीं होगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, तब तक आपको जो रूल्स हैं, जो ये रूल्स हमने देखे हैं, तब तक आपको ये अप्लाई करते रहना है जब तक कि आपके सारे प्रोडक्शंस डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको चेक करना है, दिस इज द ग्रामर गिवन टू यू एंड यू नीड टू फाइंड आउट वेदर योर ग्रामर इज डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, फाइन। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, योर ग्रामर विल बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ओनली एंड ओनली if all the productions are generated from a single variable or from a common variable and the productions are having the common prefix problem, then only your grammar will be non-deterministic। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये हिंट दी है। Now you need to find out whether your grammar is the non-deterministic grammar or not, okay। So these are the questions that you need to practice, and in the next session we'll start with the parsers, types of the parsers, right?